Hello, am I audible to all of you? Yes, there is a one student, Ritik. His name is Ritik. Yes, sir. Okay. So, kindly give me your introduction, Ritik. सर मैं Yes, राउरकेला का हूँ। very good. और सर ये अनपोस का गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ, इग्नू की तरफ से। अच्छा, इग्नू से हो। तो राउरकेला में कहाँ रहते हो? राउरकेला में छैंट। छिंड में रहते हो। ओके, वेरी गुड। सो कब ज्वाइन किया ये कोर्स तुमने? सर मेरा 2020 का है, जुलाई 2020। जुलाई 2020। ओके, सो हैव यू रिसीव्ड मटेरियल्स और नॉट? हाँ स्टडी सर, मटेरियल। मिला है ओके सर। ओके, वेरी गुड। Okay, another students has joined this class. His name is M. M. Am I audible to you or not? I'm talking to M. M. Bhavesh. Now he left. Okay. Okay. So you have received your material. यस सर। Uh, okay. So before starting this session, actually I was waiting for more students. So it will be easier for me as well as for you. Okay. So have you joined any class before this or not? यस। इसके पहले कोई क्लास ज्वाइन किया इस पे? हाँ सर। विच वन? कौन सा मुझे ज्वाइन तो किया क्लास? ये सर कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस। ओके ओके, सो I think you are aware with the concept of these classes, counseling classes. Basically, these are the counseling classes. Uh, we are not supposed to take each and every chapter and each and every topic. Okay, so you must aware of this thing. तुम अगर ऐसा सोच के आओगे कि हर जितने टॉपिक हैं सबको टच किया जाएगा या ऐसा है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 3 or 4 हाँ सर। classes. For that you have to attend each day you have to take the classes. So it is just a counseling classes. So we are here first listen to your problem regarding the paper. Okay. Before starting the session, I am introducing myself. Myself is Dr. Amit Verma. Okay. So I will be your counselor for this paper, which name is Corporate Law. You know the code BCOC 135. So COC 135। हाँ सर हाँ, ये तो कंपनी BC. लोग का है ना? Yes, yes, I'm coming on that point. Um, just my name is Dr. Amit Verma. You know it. You must know it. What is my name? And in coming 3 to 4 classes, we will interact with each other. हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे what are the problems. Okay. जी सर। Uh, this the name of this paper is company law. Before start this class, I want to know what is your background in plus two, commerce or other than commerce? प्लस टू कहाँ कॉमर्स। से किया तुमने? कॉमर्स से किए हो प्लस टू क्या? में सीबीएसई बोर्ड, कॉमर्स से। सीएचएससी? नहीं, CHSC। सीएचएससी से किए हो या सीएचएससी से किए हो? ओके। सर तो जब CHSC तो कॉमर्स से बोल किए रहा हो हूँ। तो तुमको, हाँ हाँ हाँ, सीएचएससी समझ गया। बिकॉज एवरी बोर्ड डज नॉट हैव द सेम curriculum. Okay, but I just want to know because many things you have already seen in your plus two syllabus.
I just want to know because every year I take the classes. Many of the students belongs to other stream, arts or science students. So they feel some problem because they do not have basic concept, basic idea of the commerce, and companies are not related with those things. Okay. So I start uh, this paper with few background. You know that in the area of business, when business started, business तो बहुत पुराना है. बिजनेस कोई आज का तो है नहीं. वी डू नॉट नो हाउ मच बिजनेस ओल्ड इज. बिजनेस कितना पुराना है, वी डू नॉट नो. आई थिंक बिजनेस इज इज ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन. जब से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ, बिजनेस तब से बहुत पुराना है. तो इन ओल्डर डेज योर सोल प्रोप्राइटरशिप वाज वेरी पॉपुलर. आज भी है, बहुत पॉपुलर है. Around say 70-80% you can find out in your Rourkela or your surrounding that most of the people are in sole proprietorship business. There are so many merits and demerits are associated with the sole proprietorship. In order to remove those limitations, your partnership format has come into the existence. पार्टनरशिप आया उसको, उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते. योर स्कोप इज लिमिटेड, कैपिटल इज लिमिटेड. So there are some limitations of sole proprietorship. Therefore, your partnership came into the existence. When partnership came into the existence, there are also merits and demerits of partnership. उसके भी अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उसके भी अपनी लिमिटेशंस हैं. तो एज योर बिजनेस ग्रो, जैसे बिजनेस चला पूरी दुनिया में, तो पीपल पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम. ओके. मतलब अब लोग बाहर जब बिजनेस करने लगे, उनका बिजनेस जब एक्सपेंड करने लगा, तो दैट टाइम दे फेल्ट सम प्रॉब्लम. हाउ टू हाउ टू रिमूव दिस थिंग्स. मतलब उसमें काफी रिस्क, अनसर्टेनिटीज पार्टनरशिप में भी है, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं. देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस. वो तुम्हारे जो बीएसएम अगर पढ़े हो +2 फर्स्ट ईयर में, तो उसमें है ये पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. इवन कंपनी का भी उसमें हाँ है। कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया वहां हाँ। पे, अगर याद है तुम्हें तो. ठीक है. तो उस लिमिटेशंस को रिमूव कर, मतलब उसको हटाने के लिए फिर कंपनीज का फॉर्मेट आया. एंड नाउ एट प्रेजेंट टाइम कंपनी आई थिंक इज वेरी पॉपुलर. इवन अ illiterate person understand the, not understand, at least he or she heard the name of company. उसको तुम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलोगे तो शायद ना समझ पाए, बट कंपनी वो समझ जाएगा. ओके, कंपनी, बिग कंपनी. उसको अगर बोलोगे दिस बिजनेस इज रन बाय पार्टनरशिप, हो सकता है वो ना समझ पाए उस चीज को, बट कंपनी बोलोगे तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड, इवन इलिटरेट पीपल. सो कंपनी फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट. ओके. सो जब हमने शुरू किया तो हमने एक नाम लिया कॉरपोरेट लॉ. तो कॉरपोरेट लॉ को जैसे बोला, तुमने कहा सर नहीं ये तो कंपनी लॉ है, आप कॉरपोरेट लॉ कैसे बोल रहे हो. तो there is another name of corporate law is company law. Company law और corporate law both are same. सेम है। Okay. हाँ सेम अच्छा। है, और अलग नहीं है. Whether you say corporate law or company law, both are same. इसीलिए बहुत टाइम एक वर्ड यूज होता है, कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स कंपनी कल्चर. तो एट प्रेजेंट टाइम कॉर्पोरेट वर्ड इज वेरी पॉपुलर कंपेयर टू द कंपनी. ओके. बाद में जब कभी इग्नू उसको अपडेट करेगा तो उसको कॉर्पोरेट कर देगा. तो मार्केट में बहुत से जो बुक्स हैं वो आती हैं कॉर्पोरेट के नाम से भी, कॉर्पोरेट लॉस के नाम से. तो अगर तुम स्टडी मटेरियल को छोड़ के कोई और बुक भी देख रहे हो,
So there are so many books. Okay, now I'm going to share uh, screen with you. This is your block वन, जो स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है। अपने पास लिए हो स्टडी मटेरियल? हाँ हाँ जी। ओके, सो फर्स्ट आई एम गिविंग चांस टू यू, वेयर इज द प्रॉब्लम। अगर तुमने सो कुछ स्टडी किया है, तुमको लग रहा है कि यस आई देयर इज ए पॉइंट इन विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है वो तुम हमसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। जो ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक, देयर आर 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक is devoted to company and its formation. Okay, so under this, there are 5 units: nature and types of companies, public and private companies, promoters, formation of a company, authorities under Company Act 2013. अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है तो पहले तुम हमको उससे पूछो, तो हम उसको क्लियर करते हैं। अदरवाइज इसका जो इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट है वो हम डिस्कस करें। और किसी ने ज्वाइन किया क्लास को? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। और बताइए। IGNOU is providing such facilities and you all are not available. It is very disappointing. हाँ तो बताओ रितिक, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिस्कस करें, नहीं तो फिर कुछ कुछ चीज़ों से शुरू करेंगे। हाँ सर, इसको रुकिए एक मिनट। इसको पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हो? डाउट नहीं है तुम्हारे माइंड में, होता तो तुम तुरंत उसको पूछते। सर ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल थोड़ा समझ में नहीं आया। कॉर्पोरेट वेल, अच्छा ठीक है, वहाँ भी आएंगे। तो अच्छा, इसका एक्ट बता सकते हो कौन सा एक्ट लगता है यहाँ पे? जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वैसे कंपनीज एक्ट का ईयर बता 2013। सकते हो? 2013, वेरी गुड। 2013 के पहले क्या था? 1956। वेरी गुड। तो अच्छा, अच्छा पढ़ा तुमने इसको। तो कंपनीज एक्ट एट प्रेजेंट टाइम इज 2013। 13। इसके पहले 1956 था, जो कि बहुत पॉपुलर था, बहुत टाइम तक रहा। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारा 2013 आया, इसमें बहुत से अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जी सर। हम्म, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, स्क्रीन पे है तुम्हारे। इस कंपनी अ सिटीजन? क्या हेलो, सर? इस कंपनी अ सिटीजन, ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? नहीं सर। क्या शो हो रहा है? अमित इज प्रेजेंटिंग कर लिखा है। प्रेजेंटिंग आ रहा है? हाँ। अभी दिखा? नहीं दिख रहा, खाली ओ, प्रेजेंटिंग दिख रहा। अच्छा, वो वहाँ पे शायद लग रहा है विजिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए। अच्छा, नो प्रॉब्लम। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, नेट या तो मेरी साइड में लो हो सकता है या तुम्हारे साइड में लो हो सकता है। हाँ। हाँ, तो इसको तुरंत बताओ तो हम आगे चलेंगे। कॉर्पोरेट वाला जो तुम पूछ रहे हो, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल। वेल। कॉर्पोरेट वेल, कंपनी सिटीजन है या नहीं है? कंपनी तो आर यू सिटीजन और नॉट? आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट? इंडिया, हाँ। हाँ सर है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट? हाँ सर, इंडिया का ही है। क्यों? तुम सिटीजन हो इंडिया की कि नहीं हो? हाँ सर। क्यों हो?
सर यहाँ पे हम लोग का रजिस्टर हुआ है सर। रजिस्टर हुए हो क्या? एनी पर्सन हु टेक्स बर्थ इन इंडिया बाय डिफॉल्ट ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके। रजिस्टर कराना, अगर नहीं कराओगे तो क्या सिटीजन नहीं हो तुम यहाँ के? हाँ है, रह रहे हैं मतलब क्या बोलते हैं, इतना तो अब हम कोई लोग को फॉरेनर आके यहाँ रहने लगेगा तो क्या वो सिटीजन हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है ना। नहीं सर। हाँ, तो सिटीजन के लिए एक एक्ट है, ठीक है। इंडिया का एक सिटीजन एक्ट है। उस एक्ट में बहुत, वो उसका नाम है तुम्हारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। उस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं कि हु विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन होगा, कैसे बन सकता है, प्रोविजंस आर गिवन। 1955। ओके। हाँ इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सिटीजन वही हो सकता है जो इंडिविजुअल है, सर। जो ह्यूमन बीइंग है। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो कंडीशन यही है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही और शी मस्ट बी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन कंपनी का जो आर्टिफिशियल पर्सन यस, कंपनी इज एन क्रिएटेड बाय लॉ आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ। पहली जो लिविंग इसकी लाइन है थिंग। हाँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज नॉट लिविंग पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ। सो इन ऑर्डर टू बिकम अ सिटीजन you need to first, you must be individual. So company is not individual, company is an artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन। Okay, so that is why company is not a citizen. Being a citizen, if you are a citizen of any country, for example India, you have some rights, fundamental rights. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्टिंग ऑफ वोट, जब आप वोटिंग करने जाते हो वो तुम करते हो, इंडिविजुअल करते, सिटीजन ऑफ इंडिया। कंपनी वाले जाके नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करते। वो किसको मिला है? सिटीजन को मिला है। अगर कंपनी सिटीजन है तो उसको भी जाके वोट देना चाहिए, तो कंपनी नहीं दे सकती। सो कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। हम्म। कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। इफ यू आर ए नेचुरल पर्सन देन यू हैव सम राइट्स इन आवर कंट्री। इफ यू आर ए नॉट नेचुरल पर्सन, नॉट नेचुरल मीन्स कंपनी। अच्छा, ये इसको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? वाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? हम्म। कुछ क्योंकि आइडिया सर इसका? हम्म। क्योंकि सर इसका तो वर्थ ही नहीं है। नहीं नहीं, वाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? द रीजन इज द बर्थ ऑफ कंपनी इज फ्रॉम द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का जो बर्थ है इट इज नॉट नेचुरल। कंपनी की जो बर्थ है वो नॉट नेचुरल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे नहीं होता। कंपनी की जो बर्थ होती है वो कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और उसको बीइंग ए पर्सन, एक नेचुरल पर्सन जो कर सकता है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे एक नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो ऐसी चीजें कंपनी भी कर सकती है। तो एक नेचुरल पर्सन के कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एक कंपनी भी कर सकती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। इसका बर्थ
एक एक्ट के थ्रू होता है, और इसका एंड भी उसी एक्ट के थ्रू होगा। इसको तुम मार नहीं सकते कंपनी को, ना इसकी डेथ होती है। नेचुरल पर्सन की डेथ होती है, उसको मारा जा सकता है, ही कैन बी किल्ड, बट यू कैन नॉट किल any company. You can end the company, and this end is dependent upon the act. Birth and end both are dependent on the act. चलिए अब आते हैं कॉर्पोरेट वेल पे, जो तुम्हारा क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? कॉर्पोरेट वेल का आंसर जो है, इसके आंसर के पहले एक बेस है, उसका नाम है, अगर उसका तुम पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी जानोगे तभी कॉर्पोरेट वेल्थ तुमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? इसको देखा है? स्क्रीन पे आया क्या अभी क्या? नहीं सर, कुछ आया नहीं। कुछ नहीं आया? अच्छा, मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ। अभी विजिबल हो रहा है तो? हाँ दिख रहा, थोड़ा थोड़ा, हाँ। आ गया? हाँ। ओके। तो अभी तुमको बताया, इस कंपनी या सिटीजन, इसमें एक आओगे, जो कॉर्पोरेट वेल्थ तुमने पूछा है उसके पहले हमको समझना होगा व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स ओनरशिप इज डिफरेंट and company's management is different. Okay. In the case of sole proprietorship and partnership, it is not separated. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका ओनर की अगर डेथ हो जाए, so your business is closed. If any partner retires or died, your partnership will be end. But in the case of company, you know that who are the members of the company? Those who have the shares. So members comes, members goes out, members died. There will be no impact on the company's business. So the meaning of separate legal entity is this: management is different thing, and ownership is different thing. Now come to, अभी इसमें क्या नया हो गया कि कॉर्पोरेट वेल का इससे क्या कनेक्शन है? इसमें देखो, एक स्क्रीन पे देखोगे, एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिखा हुआ है। सोलोमन वी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक केस हुआ था, दिख रहा है तो? इट इज ए केस। दिस केस अकर्ड इन द 1895। इस केस में क्या है, व्हाट इज दिस इन द केस? द केस वाज दैट सोलोमन वाज रनिंग अ बिजनेस। उसका एक शू का बिजनेस था। ओके। इंग्लैंड में। ही फॉर्म्ड अ कंपनी, उसने कंपनी बनाई सोलोमन ने। उसका नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी के अंदर काम करने वाले कौन लोग थे? उसकी वाइफ थी, ठीक है, उसके, उसका बेटा था, उसका हाँ, उसके 4 बेटे थे, डॉटर। और उसकी एक डॉटर। यही फैमिली वाले काम कर रहे हैं कंपनी बना करके। फिर बाद में क्या हुआ कि कंपनी जो है, इसे पूरा डिटेल दिया है, हम तुमको नक्शे में बता रहे हैं क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन है पास। उस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, उसको, उस सारी शेयर कैपिटल इन्हीं लोगों के पास थी, इनकी वाइफ, इनके बच्चे और इनकी डॉटर के पास। उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कैपिटल बना के उसके शेयर्स को अपने ही फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाद में क्या हुआ कि
बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चला, बहुत लॉस हुआ बिजनेस में। तो बिजनेस को जो है करना पड़ा, और बिजनेस की एसेट उसेट को सेल किया गया। तो जब एसेट को सेल करके जो पैसा मिला, उससे पेमेंट किया जाता है किसको? जिन्होंने आपको पैसा दे रखा है, लोन एज ए लोन दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो पैसा पेमेंट किया गया वो डिवेंचर होल्डर्स को किया गया। तो जो डिवेंचर होल्डर्स थे वो इन्हीं की वाइफ, इन्हीं के बच्चे थे। और जो क्रेडिटर्स थे, उसका एक अभी आगे तुम जब पढ़ोगे अकाउंट्स, तो एक कंपनी अकाउंट्स में आगे एक आएगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले पेमेंट हम किसको करते हैं? सबसे पहले हम सिक्योर्ड, जिसका लोन होता है उसको करते हैं। एक एक रैंकिंग दी गई है। तो उसमें क्या हुआ कि जितनी लाइबिलिटीज थी उससे बहुत कम पैसा एसेट को सेल किया तो मिला। तो उसमें सबसे पहले क्या किया गया कि जो पेमेंट किया गया वो सोलोमन की वाइफ और उसके बच्चे और ये लोग पा गए। लेकिन उसने जो दूसरे लोगों से पैसा लिया था, दूसरे लोगों से जो सामान खरीदा था क्रेडिट पे, वो लोग चिल्लाए, उनको पैसा नहीं मिला। तो वो लोग कोर्ट में केस किए कि भाई ये सो इनका फैमिली में ही पैसा क्यों चला गया, इनको तो पैसा हम लोग को देना चाहिए था। ये तो इन्हीं की कंपनी थी, इसके शेयर होल्डर्स तो यही थे, यही ओनर हैं, और इनको सबसे पहले आपने पैसा दे दिया। जो भी, क्योंकि पैसा लोन ज्यादा था, प्रॉपर्टी से जो पैसा आया वो कम आया। तो फिर वहां जो कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आया कि देयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ऑफ दिस कंपनी एंड सोलोमन। सोलोमन इज अ हु इज सोलोमन? सोलोमन इज जस्ट अ मेंबर ऑफ कंपनी, ओके। एंड बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेस अलग है, बिजनेस इज डिफरेंट, सोलोमन इज डिफरेंट। His wife, his children, they all are the members of company. Okay. So there is no impact of their relationship with the company. If they are acted as a debenture holders, if they are acted as a lenders, so they have equal rights. उनके पास इक्वल राइट्स है। जो भी लॉ में लिखा है, अगर लॉ में लिखा है कि द पर्सन person who has debenture, he will get first priority. So whether whether he is the member or whatever is there, he will get the preference. तो वहां पे ये जो डिसीजन दिया गया वो इसी पे दिया गया कि कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी। वो ठीक है, उसी का बिजनेस था, उसने उसको कंपनी में कन्वर्ट किया, उसके सारे शेयर्स उसी के पास से। बट इन द आईज ऑफ द लॉ, कंपनी इज डिफरेंट। Okay, Solomon is working for the company. He is working for the company. Its wife, children, they are different. They are the shareholders. उसी में किसने डिवेंचर्स ले रखा है, तो एज पर लॉ ही विल गेट द अमाउंट। और आप क्रिएटर्स हैं, आपका रैंकिंग नीचे आता है, जब तक आप तक आएंगे तब तक सारा पैसा जा चुका है, उसमें एक रैंक बना हुआ है। तो ये मतलब है इसका, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब चलो इस पे, कॉर्पोरेट वेल। व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? Under corporate well, what happens? Well means it is a kind of wall. Sometimes what happens, the persons who are working in the company, they are taking the undue advantage of these rules and regulations. Okay, वो क्या करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी में ये जो दिए गए हैं उसको वो क्या करते हैं, उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। जैसे ये सोलोमन एंड सोलोमन के केस में हुआ, इट वाज वेरी ओल्ड केस, 1895, और हम लोग अभी चल रहे हैं 2021। इट वाज वेरी ओल्ड केस। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोलोमन ने बेसिकली क्या किया,
सोलोमन को कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट मिला. इट इज अ रूल दैट देयर विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी. ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, यू कैन नॉट मिक्स इट. तो लेटर ऑन व्हाट हैपेन, मेनी कंपनीज वर टेकिंग द disadvantage, or they are they enjoyed this type of corporate wealth, and they were taking the undue advantage from the public. वो क्या वो फ्रॉड करने लगे. वो बताने लगे कि भाई हम तो वी आर द एम्प्लॉयज, वी आर द मेंबर्स, एंड दे वर चीटिंग द अदर पीपल. दैट इज द कॉर्पोरेट वेल्थ. So using of rules and regulations in order to cheat others, that is corporate wealth. इसी को कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं. मतलब जैसे अब इसमें क्या हुआ, क्रिएटर्स को पैसा मिलना चाहिए लेकिन उनको नहीं मिला. वो कंपनी किसकी थी, वो उन्हीं की थी, उन्होंने ही बिजनेस शुरू किया, उन्होंने ही उनका लोन लिया पैसा, और जब बिजनेस को बेचा तो वही पैसा लेके चले गए. क्रिएटर्स को कुछ नहीं मिला. ऐसा क्यों हुआ, वो कोर्ट ने कह दिया कि दे आर अलाउड टू गो बिकॉज दे आर इन कंपनी फॉर्मेट. दिस इज द कॉर्पोरेट वेल. यही कॉर्पोरेट वेल है. तो अब इसकी जो बात होती है इसमें दिया है कहीं आगे में, पेज नंबर क्या है, यस, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल. लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, जब लिफ्टिंग मतलब उठा देना, इसको उठाइए. लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल मतलब इस टाइप की चीजों को उठा देना चाहिए. देयर आर सम सिचुएशंस अंडर विच these type of curtain is lifted. In past, there are so many companies they were using this type of things. देखो इसमें भी लिखा हुआ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. यहाँ भी लिखा हुआ है, ये केस को यहाँ भी इसने कोट किया है, सेपरेट लीगल एंटिटी. तो देयर आर सम कंडीशंस अंडर विच दिस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट वेल और दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिफ्टेड. इसमें क्या करते हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें और कंपनी में देयर विल बी नो डिफरेंस. ओके, इतना सेक्शंस को मैं नहीं बताऊंगा. सपोज एक एग्जांपल देता हूं. सपोज देयर इज ए डिसीजन, एक डिसीजन हुआ. अंडर दैट डिसीजन इज टेकन बाय द डायरेक्टर. कंपनी के डायरेक्टर ने एक डिसीजन ले लिया, एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया. ठीक है, कुछ भी डिसीजन हो सकता है. मान हाँ। लीजिए कि उसने लोन लिया मार्केट से, कंपनीज के नाम पे उसने लोन लिया, और उसका इंटेंशन है व्हाट, टू मेक द फ्रॉड. उसको उसका इंटेंशन है उसका फ्रॉड करने का. उसने सबसे पैसा ले लिया और बाद में उसने कहा, मतलब जब रीपे करने की बात आई तो वो रीपे नहीं कर रहा. ठीक है, जब रीपे करने की बात आई तो उस डायरेक्टर ने कहा नहीं, हम जो है रीपे नहीं करेंगे. यू कैन प्रोसीड वॉट एवर यू कैन. ठीक है, तो जब कोर्ट में जाएगा तो ये डायरेक्टर ये बोलेगा कि कंपनी इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, दिस लोन इज टेकन बाय द कंपनी, सो यू रियलाइज दिस अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, नॉट बाय मी. हाँ, तो वो कंपनी कॉर्पोरेट का वेल, ही है ना, यस. कंपनी से लेगा। कॉर हाँ, वो डायरेक्टर ये कह रहा है कि दिस लोन इज टेकन बाय whom, दिस लोन इज टेकन बाय द कंपनी, so you go to कोर्ट एंड रियलाइज योर अमाउंट. जिससे पैसा लिया उससे कह रहे भाई आप कोर्ट में जाइए, वहां से करिए, मैंने लोन नहीं लिया है, कंपनी ने लिया है. बट डायरेक्टर न्यू दिस, डायरेक्टर को ये रूल पता है, तो उसने लोन ले लिया था मार्केट से, उठा लिया लोन. उसने डेलिबरेटली ये काम किया है चीट करने के लिए. अच्छा। उसने चीट करने के लिए लिया, क्योंकि उसको पता है कि कौन जाएगा, कंपनी जाएगी, उसका हाँ। कुछ नहीं जाएगा.
क्या होगा? कोर्ट कोर्ट यही करेगी, ठीक है, आप कंपनी की एसेट को सेल करिए और उसको पैसा दीजिए जो इसने लोन दिया है। तो द डायरेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। डायरेक्टर को तो भाई मान लो उसने 10 करोड़ उठा लिया मार्केट से, तो वो तो अपना लेके भारी हो गया पैसा। ओके, तो ये कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठा रहा है, तो इसी को हटाया, इसी को बोलता जाता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। फायदा नहीं, फायदा उठाया तो इसी के लिए नहीं। नहीं, वेल उसने उसने गलत फायदा उठाया। हाँ। वो जब तक ये कॉर्पोरेट वेल है, ठीक है, ही कैन सेव हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचा लेगा मार्केट से। 50 करोड़ 10 करोड़ उठाएगा, भाग जाएगा वो। आप उसका लीगली कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो लोन किसने लिया? कंपनी ने लिया। कंपनी ने। कोर्ट तो जब भी कहे कि कंपनी मान लो बंद भी होती है, तो इट इज द लॉस ऑफ द मेंबर्स। जिसने उसके शेयर्स लिए उनका लॉस होगा, उस एम्प्लॉय का नहीं होगा। डायरेक्टर को तो मिल गया पैसा। तो इसीलिए यहाँ बात आती है लिफ्टिंग दिस कॉर्पोरेट वेल, इसको उठाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को ये ऐसा लगता है कि नहीं, दिस कोर्ट है या एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, कंपनी बोर्ड हमारे इंडिया में है, दे कैन गो एंड लॉन्च देयर कंप्लेन एट प्रेजेंट टाइम। इसमें और भी आगे बताऊंगा, बुक में है। देयर इज ए बोर्ड, कंपनी का एक बोर्ड है। इफ यू आर नॉट happy with the conduct of the company, you can lodge the complaint in that office. Okay, if you are not satisfied with the judgment of that board, you can go to the Supreme Court. So there are many authorities under which you can lodge your complaint. Okay, so if these authorities um, realizes that no, director deliberately conducted these things, he is taking the undue advantage of this law या दिस रूल, सेपरेट लीगल एंटिटी का वो मिसयूज कर रहा है। सो इन दिस केस देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर। इस केस में क्या होता है, जब हम इसको उठा हटा देते हैं, लिफ्टिंग मीन्स हटा देना, उठा देना। व्हेन वी आर लिफ्टिंग दिस थिंग, so there will be no difference between company and director. Okay, so here amount will be realized from the director, not from the company, remember। कंपनी से पैसा नहीं लिया जाएगा, उस डायरेक्टर से पैसा लिया जाएगा। डायरेक्टर हैज टू पे। इफ ही इज नॉट एबल टू पे, हिज प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड आउट। So the meaning of lifting corporate well is this. Under the corporate well means corporate rules and regulations. In the shadow of these rules, many people, many persons are taking the undue advantage. इसीलिए यहाँ भी इसी केस को इसने यहाँ पे कोट किया है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, तो नाउ इफ यू read this topic, you will get better insight। ओके, तो हमने तुमको इसको नटशेल में बताया है, और बुक इसको पढ़ोगे, इसमें जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, इट विल क्लियर योर माइंड। और क्या है तुम्हारा इसमें डाउट? काइंड्स ऑफ कंपनीज देखा है तुमने, ऋतिक? काइंड्स ऑफ कंपनीज, क्या? हेलो? हाँ हाँ। काइंड्स ऑफ कंपनीज, ओके। तो this chart is given, so we can see different types of companies on the basis of there are different types of कंपनी बहुत तरह की होती है। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। +2 में पढ़ा होगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज। बट अपार्ट प्राइवेट फ्रॉम कंपनी, दोज पब्लिक कंपनी। two companies, there are also other type of companies। Okay,
So your first one is this one, on the basis of incorporation. So on the basis of incorporation, chartered statutory registered company. अंडर द रजिस्टर्ड चार्टर्ड कंपनी अब एक तरह से समझ लो खत्म हो गई है, ये कोरवाल चार्टर से बनती है। इन द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल, इन द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट टाइम company was formed by special act, that is why it is known as a chartered company। हम इसमें इसके ले आए हैं, इसमें एक्चुअली तीन कंपनी जो है इन 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ये जो थ्री कंपनीज है इनको इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूसर कंपनीज, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज। ठीक है, रेस्ट थिंग तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, बट दीज थ्री आर वेरी न्यू टाइप ऑफ कंपनी, प्रोड्यूसर्स कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। इसके बारे में थोड़ा पढ़े हो या कुछ आइडिया इसका है तुम्हें, प्रोड्यूसर्स कंपनी? प्रोड्यूसर कंपनी। देखो प्रोड्यूसर्स कंपनी क्या है, प्रोड्यूसर्स कंपनी बेसिकली दिस कंपनी is started by those people who are involved in agriculture related things। ओके, उसको एग्रीकल्चर नहीं, उसका एक नाम होता है प्राइमरी प्रोड्यूस, एंड यू नीड एटलीस्ट 10 पीपल। ओके, तुमको कम से कम 10 लोग चाहिए जो इस कंपनी को शुरू कर सकते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू नो इट, यू नीड मिनिमम टू, मिनिमम 7 कंपनीज, और प्राइवेट में टू। ओके, बट इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी यू नीड मिनिमम 10 पीपल, then you can start, and no simple man can start this company। इसके लिए वो पर्सन जो है प्राइमरी प्रोड्यूस में इन्वॉल्व होना चाहिए। प्राइमरी प्रोड्यूस मीन्स व्हाट, प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें डेयरी आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, बी फार्मिंग, पोल्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज। तो ऐसे जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको ये मोटिवेट करने के लिए इसमें इस 2013 में इसको ये इंट्रोड्यूस किए प्रोड्यूसर कंपनी। नाउ कम टू वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी इट इज वेरी स्पेशल कंपनी। अभी तक एक जितना ही पढ़े हो कंपनी उसमें ना क्या फिर? है, यू नीड, नहीं नहीं, अभी तक जितना भी पढ़े हो यू नीड मिनिमम 2 पर्सन इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी टू बिजनेस, पर्सन एनी कंपनी, you need minimum two, minimum two in the case of private company, in the case of public 7 companies, in the case of your producer company 10 members are required। Now this is the very new concept, OPC, one person company। Okay, so under the one person company you need one person, one person can start this business, and it is introduced in this new act, Companies Act 2013। So only one person can start द कंपनी, एंड खाली एक ही मेंबर होगा। जैसे ही वो दो या तीन होगा तो ये दैट कंपनी इज नॉट वन पर्सन कंपनी, द मेंबर इज ओनली वन। ओके, so we have only 3 to 4 minutes, इसीलिए इसको तुमको बताया है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। नाउ कम टू स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज का मतलब क्या है, ये भी 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी मीन्स विच पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, जिसकी पेड अप 50 कैपिटल लाख नहीं? 50 लाख रुपीज, यस यस, 50 लाख रुपीज के बिलो है, दैट कंपनी इज स्मॉल कंपनी। और तुम्हारा उसका जो टर्नओवर है, ठीक है, लास्ट लास्ट ईयर का जो उसका टर्नओवर है, इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़। अगर इसमें से कुछ भी अगर इधर उधर हो जाएगा, 50 लाख से वेब हो जाएगा या तुम्हारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो दैट कंपनी इज नॉट स्मॉल कंपनी।
लेकिन इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मतलब है? If your company is a small company, so you will get so many benefits from the Companies Act. You will get many relaxation from the taxations. You will enjoy so many assistance from the government. Okay, so government of India is providing many benefits to the small companies. तो सर, ओके, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा जो 1-2 मिनट में देख सकते होंगे हम लोग? Okay, next time we will discuss your block 2. Okay, block 2 as well as 1. If you have any doubt in block 1, so we will discuss that those things, and thereafter we will start block 2. कब क्लास है हमारा? डे आफ्टर टुमारो, संडे को क्लास है. हाँ ओके, so first I give chance to you if you have any doubt in on any topic, so we will discuss that point. Otherwise, I will discuss any point. So block 1 or block 2, you just see it. जैसे आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, ये जो वेल वाला पूछा तुमने, कॉर्पोरेट वेल. हम्म, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, तो हाँ। इसके बाद कौन सा क्लास है तुम्हारा? विच वन? इसके बाद तो नहीं है सर, कल है। कल है? कल कितने टाइम का है? ओके, याद नहीं होगा, यही टाइम होगा उसका. हाँ सर। हाँ, तो इसको देख लो. इस अंडर द दिस block 1, if you see, nature and types of companies, public and private companies, promoters, formation of company, authorities under Company Act 2013. I think everything is almost not very complicated. Public company, you know it, minimum 2%, sorry, minimum 2% और 7%, or maximum no limit. No limit. नॉलेज में। Under the private, minimum 2%, you need it, and maximum 200. Okay. So under this, if you have any problem, you can ask in next class. Promoters are those persons. Basically, promoters कौन है? Who are the प्रमोटर्स। promoters? Promoters. Listen, company cannot take birth by itself. Okay. Company is not a natural person. Company cannot take birth. Before, in order to make company, there are so many legal procedures you have to follow. You have to file many things. You have to prepare many documents. You have to submit many fee. Then company comes into the existence. So when all these the persons who are doing all such things are known as a promoters. They are promoters. They are not members. Remember, who are the members? Members are those persons who have shares of a company. They are the members. So when company comes into the existence, thereafter shares will be issued. तब जाके शेयर इशू होता है पब्लिक में, आईपीओ निकलता है मार्केट में. इनविटेशन है. इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, यू हैव टू परचेज द शेयर्स. तो ये सारा काम कैसे करेगी? गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क. गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है. गवर्नमेंट कैन डू द वर्क फॉर ओपनिंग द गवर्नमेंट कंपनी, नॉट द प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट पब्लिक कंपनी। कंपनी. पब्लिक कंपनी। So they are the people. They are interested people. They are taking all these things. They are complying all the legal activities, and they are uh, they helps in making the existence of company. वो सारे काम करते हैं उसको. So they are promoters of the company. So promoters are very important. If there is no
If promoters are not there, then you cannot imagine of any company. तो उनको promoters बोला गया है. तो उनके भी बहुत से क्या है, whatever they made the whatever they expense the amount, they have right to recover from the company. ठीक है, वो अपने कंपनसेशन ले सकते हैं, जो भी अमाउंट पे किया है वो सब ले सकते हैं, रेमुनरेशन ले सकते हैं. तो प्रमोटर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लगता इजी है बट इट इज नॉट सो इजी. In the beginning you feel very easy, but later on there are so many acts are there. अब आप ही कंपनी बना रहे हो तो यू कैन डू मेनी थिंग्स. आप जिसको चाहो शेयर दे दो, जिसको चाहो शेयर्स ना दो. हाँ. हाँ. सो दे कैन मेक द फ्रॉड. वो फ्रॉड कर सकते हैं. सो दैट इज वाई देयर आर सो मेनी एक्ट्स, आर सो मेनी प्रोविजंस आर देयर. तो promoters is very important, you can say, the part of the company. Company. Formation of a company is also important, you must know it. So your block one is very important. If you have good command over the block one, so rest things will become the easier for you. Rest चीज तुम्हारे easy हो जाएगा. Block one, Block sir. one is very, हाँ वो easy होगा because basics are given in block one. Then principal documents is also not very complicated thing. Share capital and membership, everything will be clear. Okay, so time is almost over. So we will meet on the Saturday, not Saturday, Sunday. Sorry. Sunday. Tomorrow is Saturday. So day after tomorrow, we will again meet and we will discuss on the other topics. So it was nice meeting with you. Thank you, sir. Okay. Uh, Bye and good night.